Okay, so this is critical reasoning part two, and we'll be solving and understanding what exactly is the difficulty level in these questions that we are going to face now. But before proceeding, let's see a bit of nuances what we have studied till now in critical reasoning. You guys were very much convinced and you were very much comfortable with this part of argument premise conclusion. An argument is made up from a premise. Premise is something that gives us any sort of reason or something that supports a conclusion. That is what a premise is. And in other words, I can say that it is something that provides a logical support. Now it comes to conclusion, then I can say that if this is a passage, there has to be something that is being discussed in the entire passage as a whole. And that is what the author wants you to believe. Whatever the author is thinking कि यार मेरा जो रीडर है he should understand this thing, उसको हम लोग conclusion बोलते हैं. ठीक है, the final claim जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा पैसेज कंस्ट्रक्टेड रहता है. देन कम्स द एविडेंस, एनी सॉर्ट ऑफ डेटा, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल्स, premise, anything that is given, anything that is strengthening the premise, that is what a conclusion an evidence is. Now comes the core logical elements. Fact is something that can be verified. आप वेरीफाई कर सकते हो उसको फ्रॉम any of the data source. Then comes the claim, any arguable statement that needs support. उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, बिना उस सपोर्ट के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. EVs are better than petrol cars. There has to be something, a debatable format that we have discussed. Assertion is something that मान के चलो I'm saying that Manju is a great guy. Now, the person who is listening for the very first time for this particular statement, he might be thinking, why the hell is he speaking in such a way for a guy named Manju? है ना? It is pretty much obvious. But you are saying that confidently. आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल, आइडियली कोई प्रूफ नहीं है अभी उसका, बट यू आर सेइंग दैट थिंग कॉन्फिडेंटली, विच इज व्हाई आई कैन से दैट इज एन असर्शन ऑफ द ऑथर. देन कम्स द जजमेंट, एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, आप इवैल्यूएट करते हो गुड, बैड, बेटर, वर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन कम्स द प्रीमाइस, कंक्लूजन, वी हैव बीन डेल्ट विद दैट. Then comes identifying conclusion. What are the core concepts? The very first is therefore होगा उसमें, thus होगा, hence होगा, consequently होगा, so होगा, clearly होगा, this shows that होगा. Now when I'm saying these are some of the identifying figures of conclusion, then what am I referring to is, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही चीजें वहां पे हूं. इट कुड बी कि इनका कुछ इंटू 10 या 10x भी कुछ दिया जा सकता है आपको. कॉन्सिक्वेंटली का हो सकता है कुछ पर्यायवाची दे दिया जाए. नो, यू डोंट नो. नाउ टू tackle that thing you have to read extensively. That is the reason I tell you all to read the articles as much as possible, because article जब आप read करते you get to develop your vocab, and that is how you deal with it. And then assumption framework, the very vicious one. assumption को deal करना बहुत difficult होता है, but I have tried to क्या बोल सकते हैं इसको, हमने कोशिश की है दैट आई कैन somewhere down the lane, suppose if this is a passage, है ना, something is written, second para, the third para, the fourth para, fine, ये भी कुछ लिखा है. These are all the frameworks, these are the sentences and the paragraphs that are given in a passage. Now what is an assumption? Assumption is something that is not really stated in the passage. You have to identify. Come on man, you are reading critical reasoning, at least the examiner can expect this much from you, and it is pretty much obvious. एग्जामिनर सोचेगा यार इस बंदे को इतना तो पता ही होगा कि आखिर एक प्रीमाइस क्या, एक अजम्पशन क्या होता है. अजम्पशन इज समथिंग दैट इज अनस्टेटेड. नाउ दिस इज ओनली फॉर योर रिवीजन फॉर्मेट, ठीक है, ताकि आप लोग को अब जो क्वेश्चन करें दे विल बी काइंड ऑफ थोड़े से बड़े लेवल के रहेंगे, ठीक है, विच इज वाई हम एक बार ये रिवीजन आप लोग को करवा दे रहे हैं. नाउ supposedly I'm taking this another pen and there is a correlation. Now I want you to answer me one very simple question, Manju. What are these arrows signifying in this? I told this in class many times. ये arrows आखिर बता क्या रहे हैं? Sorry? Bridging the gap between Perfect. arrows. They are bridging the gap. एक गैप है, आप देख सकते हो इनके बीच में एक गैप है. स्टेशन ए, स्टेशन बी, इन दोनों के बीच में गैप है, ट्रेन कवर करेगी. दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग ब्रिजिंग द गैप. दैट इज व्हाट assumption is.
assumption is something जो आपके unstated premise और आपके अनस्टेटेड कंक्लूजन के बीच में जो फासले रहते हैं उनको कम करने का प्रयास करता है ना। लेट्स सी एन एग्जांपल। प्रेमाइस बोलता है भाई साहब देख कंपनी की प्रॉफिट दे हैव इंक्रीज्ड आफ्टर रिमोट वर्क स्टार्टेड। कंक्लूजन क्या होगा? रिमोट वर्क इंक्रीज्ड कंपनी प्रोडक्टिविटी। नाउ आई गेस आई टोल्ड यू गाइस अबाउट दिस दैट व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉफिट, रिमोट वर्क एंड इंक्रीज बीइंग डूइंग हियर। व्हाई? बिकॉज देखो इसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं। आइडियली अगर देखा जाए तो आप बोलोगे सर यहां पे ये कंक्लूजन नाम की जो चीज है, ये जो चीजों को बता रहा है, आइडियली ये प्रेमाइस में गिवन नहीं है। दैट इज व्हाट यू कैन से। बट एट द सेम टाइम आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सिंस इट इज अ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसके बेसिस पे अब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं। कंपनी इज अ स्टेक होल्डर। काम करते हैं, इसको हम पूरा डिलीट करते हैं ना, रुको अच्छे से समझाई दे रहे, बिकॉज इसमें काफी लोग को प्रॉब्लम आई है। ठीक है चलो, कंपनी इट इज अ स्टेक होल्डर। इतना क्लियर है? स्टेक होल्डर मतलब जो एक रोल प्ले कर रहा है किसी भी ट्रांजैक्शनल अमाउंट या किसी भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट में, वो हो गया आपका स्टेक होल्डर। ओके फाइन सर। रिमोट वर्क हैज बीन स्टार्टेड इन दिस, मतलब कंपनी अगर यहाँ पे है, एम्प्लॉय का होम अगर यहाँ पे है, तो एम्प्लॉय यहां से काम करके कंपनी को दे रहा है, विच इज वाई इट इज सेइंग रिमोट वर्क हैज स्टार्टेड। नाउ इफेक्टिवली इसका जो फाइनल कंक्लूजन है, इफेक्टिवली अगर हम बोलें, इसका जो फाइनल क्लेम बन रहा है, ये क्या बन रहा है कि भैया घर में बैठे बैठे वो व्यक्ति काम कर रहा है कंपनी के लिए, कंपनी इज अ स्टेक होल्डर इन दैट, एंड द प्रेमाइस इज सेइंग इसके कारण हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने आप अब इंक्रीज हो रहे हैं। इतना क्लियर है? कमन फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना होता है, या जल्दी कैसी? बताओ। ओके परफेक्ट। या देन कम्स द कंक्लूजन। इसके बेसिस पर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? भैया घर ये है, कंपनी ये है, प्रॉफिट ये है मेरा। अब चलो कंक्लूड कर लेते हैं कि रिमोट वर्क के कारण कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है अब वो बढ़ जाती है ना। आप सोचोगे सर प्रोडक्टिविटी तो है ही नहीं प्रेमाइस में। देन आई विल से बडी दैट्स द मेन थिंग। अगर उस प्रेमाइस में वो पर्टिकुलर चीज नहीं गिवन है, देन दैट कैन हेल्प यू टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेमवर्क दैट कैन वर्क एज एन अजम्पशन। मतलब कैसे? प्रोडक्टिविटी अभी तक नहीं दी गई थी, बट व्हाट आई कैन से इज हमको भाई साहब प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। हाउ कैन प्रॉफिट इंक्रीज? इफ कंपनी इज अ स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय इज अ स्टेक होल्डर, इन दोनों को अगर हम कोरिलेट कर दें, ये दोनों काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। बिना प्रोडक्टिविटी के बढ़े प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? अभी क्लियर है? या कैसी? ओके, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब इसी के बेसिस पे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? स्टेक होल्डर्स, कंपनी, एम्प्लॉय, प्रॉफिट एंड आपकी प्रोडक्टिविटी, ये हमने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया। यहां हिडन अजम्पशन क्या है? एम्प्लॉइज वर्कड मोर एफिशिएंटली रिमोटली। रिमोट वर्क, ये आपका रिमोट वर्क है, दे आर वर्किंग रिमोटली। उसने बस कंस्ट्रक्शन चेंज किया है सेंटेंस का। ही डिड नॉट चेंज द सेंटेंस, ही जस्ट हैव चेंज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर सेंटेंस, एंड उसके कारण आपको ये लग सकता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये इररेलेवेंट है, बट एट द सेम टाइम ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा कंफर्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, नाउ अगर ये सारी चीजें क्लियर है, आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। आई वांट यस और नो फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू फास्ट। यस। ओके, फास्ट फास्ट फास्ट, बाकी लोग जो बचे हो। Yes, yes. Yes. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस देन। ये तो आज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल्दो दिस वाज होमवर्क फॉर यू गाइस, बट ठीक है अपन देखते हैं एक बार। अ बुलेट ट्रेन ट्रैवल्स एन एक्सेस ऑफ 150 miles per hour, therefore now Mahesh please tell me a very simple thing, what can I treat this as? इसको क्या आइडेंटिफाई करो क्रिटिकल रीजनिंग के लैंग्वेज में आप? मिस्टर महेश, Effect. सॉरी, Effect. it is an effect
नॉट वेरी कन्विंस, समथिंग एल्स? Conclusion. परफेक्ट, कंक्लूजन अभी पढ़ाया। अगर ऐसा कुछ भी दिया है आपको सेंटेंस में दैट इज लाइक देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ये सारी चीजें, देन उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वी कैन से कि वो एक कंक्लूजन का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। चलो ठीक है भाई साहब, समझ गए। देखते हैं आगे। एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन, ठीक है, या डूडल शीट या वॉट एवर यू से दैट, आई डोंट नो। एक बुलेट ट्रेन है, ठीक है, मान के चलो ये आपकी बुलेट ट्रेन है। It travels at an axis of 150 miles per hour. At an axis of, exactly वही नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है it travels at an axis of, ज्यादा। Therefore, if a train travels slower than 150 miles per hour, इसको हम बोल देते हैं ट्रेन A, then दूसरा हमारा कोरिलेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलो कोई दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रेन बी, अगर ये 150 mph से कम ट्रैवल कर रही है, देन इट इज नॉट अ बुलेट ट्रेन एंड इट इज अ बुलेट ट्रेन। इतना क्लियर है? अभी तक देखो, आई डिड नॉट अप्लाई एनी लॉजिक इन दिस। द एंटायर थिंग, द एंटायरिटी दैट आई डिड इन दिस वाज कि भैया जो हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन है, हमने बस उसको उठाया और एक ग्राफिकल फॉर्मेट में बना लिया, बात खत्म। इतना क्लियर है? Yes, Yeah. yes. Okay. Yes. Now, before proceeding towards the option, let me tell you a very simple thing कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चंस को बोला क्या जाता है। आप ध्यान से अगर देखोगे, I did not draw anything like this, I did not draw anything like this, I didn't do anything like this, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। हुआ है? ध्यान से देखो, ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, हमने इतना किया बस। दिस मीन्स कि अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेलल लॉजिक। इनको पैरेलल लॉजिक के क्वेश्चंस बोला जाता है। मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो मान के चलो अर्थ नंबर 682 पे है, इसका एग्जिस्टेंस जो है उसका अर्थ नंबर 672 पे है। दोनों अपने अपने वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कोई कोरिलेशन अभी तक एग्जैक्टली हम इसमें निकाल नहीं पा रहे हैं, विच इज वाई इट इज सेड टू बी एज अ पैरेलल लॉजिक क्वेश्चन, लाइक अ पैरेललोग्राम, दे डोंट मीट एवर। ठीक है, समझ गए? या देखो इतना टाइम नहीं रहता यार, आप लोग इतना लेट बोलोगे ना, प्लीज। Yeah, Casey. Okay. Now, which of the following most closely parallels the reasoning used in the argument above? ध्यान से देखो, अगर उसने A और B यहां लिख दिया है, just like a parallelogram, उसने A और B लिख दिया, अब बोल रहा है which of the following most closely. Now, what does this mean most closely? इसका मतलब क्या होता है पहले अपन ये समझते हैं, क्योंकि मान के चलो कैट, जी मैट, जैट, एनमेट, स्नैप, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया तो इट मीन्स 5 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है, इनमें से हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो, 2 गलत हो। अब यू विल बी थिंकिंग फक मैन, हाउ द फक कैन आई assume something, how the hell can I identify जिसमें 3 ऑप्शन सही हैं? That is where this most closely comes into picture. आपको कोई ऐसा एक ही ऑप्शन सही चुनना है जिसके पास 100 स्कोर होगा, बाकी के पास कम स्कोर होगा। आई एम नॉट सेइंग दे आर इनकरेक्ट, आई एम जस्ट सेइंग उनकी स्कोरिंग में डिफरेंशिएशन आएंगे। तीनों सही हैं फैक्चुअली, कंटेक्स्ट के हिसाब से भी सही हैं, बट दे आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन टू द एक्सटेंट एट पार विथ ए। बी उस लेवल पे आंसर नहीं कर पाएगा क्वेश्चन को जिस लेवल पे ऑप्शन नंबर ए करेगा। ये चीज क्लियर है? Yes. Yeah. ओके देन, चलो देखते हैं। An orange ripens only on the vine. If it ripens on the vine, then it is not an orange. ठीक है, चलो अब अगर हम इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ब्रेक डाउन करें, ठीक है, आप कोई भी एक ऐसा आंसर देखो जिसमें आपको ये पैरेलल लॉजिक दिख रहा है, ये चीज दिखनी चाहिए आपको।
ऐसा कोई भी ऑप्शन जो इस कैटेगरी को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी माय करेक्ट आंसर. हाउ वी डू दैट, लेट्स सी. मान के चलो आपसे बोलता है ऑप्शन नंबर ए, एन ऑरेंज राइपन्स ओनली ऑन द वाइन. सपोजिटली हम इसको ट्रीट करते हैं, if it ripens on the vine then it is not an orange. Reverse logic, then y. if x then y. ये चीज क्लियर हुई. हमने बस उसके नाम को बदला है. आई डिड नॉट चेंज द कंस्ट्रक्शन, आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग. ऑल आई डिड वॉज हमने बस उस कंस्ट्रक्शन को समराइज कर दिया है, छोटा कर दिया है. ठीक है, आगे देखते हैं. अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, इफ एक्स देन वाई, थोड़ा सा चलो एक्सटेंड किए, देन इफ वाई देन इट कैन नॉट बी एक्स. इसने उस चीज को रिवर्स कर दिया. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहला ऑप्शन बोल रहा है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, इट इज सेइंग इफ एक्स देन वाई, सो इफ वाई देन इट कैन नॉट बी ए. मतलब ये जो रिलेशन है ये ऐसे तो जा सकता है बट ये ऐसे नहीं आ सकता. इसको इस तरीके से देखो, इतना देखो, अभी पहले इतना समझ में आया, ये वाला पार्ट स्टार वाला. Yeah. ठीक है, ये क्लियर हो गया ना. ये तक अभी तक वेरीफाइड है. नाउ इट इज सेइंग इफ वाई, मतलब वाई को अब उसने पहले डाल दिया है. देन इट इज सेइंग, अब जो लॉजिक है इसका, ये वाई से एक्स की तरफ जाएगा. मतलब हमारा अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐसे ना जाके वो ऐसे हो गया है. पहले ये था, दूसरा ये, पहला सही है दूसरा गलत है. दैट इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग. समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ये बताओ पहले. नहीं केसी, सेकंड पार्ट में कंफ्यूजन है. ओके, I'll try to break this down easily. ठीक है. मान के चलो इसको हटा देते हैं 2 मिनट, है ना. मंजू आपको क्लियर है कि नहीं? Yeah, Casey. I feel you have strong critical reasoning skills because कल भी हमने देखा क्लास में आपकी काफी सारे आंसर सही रहे हैं. चलो ठीक है. मान के चलो अगर कोई बुलेट ट्रेन है तो सबसे पहली चीज, इट विल बी फोकसिंग अपॉन स्पीड and that speed has to be greater than 150 miles per hour. Mahesh, keep your mic switched on. Therefore, we can say anything that has a speed less than equal to 150 mph, it will not be a bullet train. इतना क्लियर है आपको? ठीक है. हाँ, इतना Now, क्लियर है. आइडियली अगर देखें तो ये जो कोरिलेशन अभी अपन ने बनाया है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्गुमेंट इज पैरेलल लॉजिक, कोरिलेशन इज कॉन्ट्रापोजिटिव. कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब कॉन्ट्ररी टू द पॉजिटिव, दैट इज अ नेगेटिव. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इफ ए देन बी and if there is not the existence of b then there will be no existence of a as well. ओके, अब समझ आए? हाँ. ठीक है, मतलब अगर a एग्जिस्ट करेगा तो b तो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ये तो वेरीफाइड है. लेकिन अगर b एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसके कारण a भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, दोनों मर जाएंगे. ठीक, ये आर्ग्यूमेंट क्लियर है आपको? अब एक काम करते तो हैं हाँ, यहाँ पे कैसे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि A एग्जिस्ट देन B, ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है. ठीक इफ है, नॉट A, तो इसका मतलब क्या है, B इज अ सुपर सेट ऑफ A. कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं. इट इज अ सुपरसेट या सबसेट ऑफ ए. सबसेट तो नहीं बोलेंगे, सुपर सेट बोल सकते हैं, क्योंकि B बड़ा होगा तभी. B नहीं है तो इसका मतलब A भी नहीं है. कह सकते हैं, नो वरीज. ओके ओके, गॉट इट. चलो ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं. इफ ऑरेंज राइपन्स ऑन द वाइन, ऑरेंज राइपन्स ऑन द वाइन, ऑरेंज यहां पे है, वाइन यहां पे है, ऑरेंज राइपन्स ऑन द वाइन. चलो अभी तक तो सही है.
इफ इट राइपन्स ऑन द वाइन देन इट इज नॉट ऑरेंज। अरे भाई यहां तो आपका आर्ग्यूमेंट क्रम्बल डाउन हो गया। आपका हाँ पूरा आर्ग्यूमेंट जो था अभी तक आपने कंस्ट्रक्ट किया था कि अगर x है तो y होगा, और अगर x नहीं है तो y भी नहीं होगा। ये लॉजिक हाँ तो आपका क्रम्बल डाउन हो गया, विच इज व्हाई आई कैन से ऑप्शन नंबर कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Moving ahead, newspapers are often read by more than one person. Therefore, magazines are also likely to be read by more than one person. What the hell are you saying? I mean, one side you are saying newspaper, and the other side you are saying that magazines. They are totally different things. They all non-existent. अगर हम बोल रहे हैं तो न्यूज़पेपर आपका एक अलग एंटिटी हो गया। ठीक है, न्यूज़पेपर कम ऑन यार, ये डेली आते हैं। मैगजीन्स जो होती हैं दे कम वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार आएंगी। Which is why I can say this is kind of irrelevant. This does not even play any sort of role in this. Which is why I can say option number B is also eliminated. An earthquake of 5.0 or above on the Richter scale, ठीक है, earthquake of 5.0 or above causes massive damage. इसका डैमेज का जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। एंड इफ देर इज नॉट मैसिव डैमेज, चलो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर मैसिव डैमेज नहीं है then earthquake did not attain 5.0 or above. Then earthquake did not attain 5.0 or above. Sorry. अभी हमें एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी। अर्थक्वेक 5.0 था या उससे ज्यादा था, तो डैमेज उससे ज्यादा हुआ। डैमेज ज्यादा नहीं है इसका मतलब अर्थक्वेक भी नहीं है। क्या ये लॉजिक वेरीफाई हो रहा है? आप ध्यान से देखो इस चीज को। आर दे गेटिंग रिलेटेड? हाँ हो रहा है ना? हम्म Which is why till now I'm very much convinced, but I'm not marking my answer. I'm just holding this out. Why? Because critical reasoning हमको क्या स्किल सिखाती है? It could be कि आगे वाला ऑप्शन जो है वो और भी ज्यादा कन्विंसिंग हो। It could be that case. Which is why I'm not gonna mark option number C as my final answer as of now. Let's move to option number D for a moment. A supersonic plane travels at a speed that excess of Mach 1. I hope you guys might have seen that movie named Top Gun Maverick. Mach 1, a supersonic plane, चलो हम इसको M1 कर देते हैं। एक सुपरसोनिक प्लेन है आपका, ठीक है, ट्रेवल्स एट अ स्पीड विच इज x is then Mach 1. ओके, इफ इट इज नॉट सुपरसोनिक, अगर वो सुपरसोनिक नहीं है, देन इट विल ट्रेवल एट स्पीड बिलो Mach 1. ओके, beautifully curated option. Now I want any one of you to answer a very simple question. Could this be my correct answer or more convincing answer? Yeah, Casey, comparing to C, it is most likely the the question says. Okay, most likely you're saying, but still you're not confirm of that, right? D is the आंसर हो सकता है Casey. C से चलो ठीक है, C से ज्यादा कन्विंसिंग है। let's do a drill then. Keep your mic on. I want stakeholder, मतलब एक और जन चाहिए। I'll be the judge. Let's do a role play in this. ठीक है, मजा आएगा बहुत। एक और जन चाहिए, कौन बनेगा जल्दी बताओ। I want a defendant and a prosecutor. I am the judge. Come on fast. जल्दी बताओ। ये सिर्फ सुपरसोनिक के बारे में बात कर रहा है, सुपरसोनिक प्लेन के बारे में नहीं बोल रहा है। सुपरसोनिक तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब ठीक है, सुपरसोनिक प्लेन इज जस्ट वन एंटिटी ऑफ दैट सुपरसोनिक। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक्सीड कर जा रहा है, जबकि हमारा मतलब आर्गुमेंट होना चाहिए था ऑन द सुपरसोनिक प्लेन। ठीक है, तो I like मेरे हिसाब से इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिविएट कर गए फ्रॉम द पॉइंट, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द सुपरसोनिक प्लेन ओनली। ठीक है, then I would like to know, like you are the person who is the prosecutor, right? So let's do one thing, ठीक है? I know this might sound absurd, but जब आप इंटरव्यू देने जाओगे है ना, दे विल गिव यू अ केस स्टडी, ठीक है? और उस टाइम पे ना ये वाली जो स्किल अभी हम बता रहे हैं, दे आर फकिंग हेल्पफुल, आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक है, चलो देखते हैं।
The prosecutor is Mahesh, the defendant is Manju, and I'm the judge. ठीक है? Both of you will be getting only 3 arguments to answer. जिसके भी arguments में ज्यादा टिक हुए वो जीत जाएगा इस केस को, ठीक है? Now, I am the judge. I have been told that this is a case of contrapositive, and you have to identify the framework where A is leading to B, and if there is not the existence of B, then it cannot happen that A would be existing. ठीक है? Now, I want Manju, the defendant, I want you to put up your nuances, your arguments. आप इसको कैसे devise करोगे? Come on, Manju. किसी as like the question, there is comparing of the speed. ठीक है. Manju is saying speed है sir. Mahesh, how would you defend this particular logic of him? Although it talks about the speed, but it talks about the supersonic plane. So that is one particular entity. You can be ठीक है. supersonic for anything. ठीक है, perfect. Till now, I'm convinced from both the arguments. Now, my next question is that supposedly the speed is not greater than Mach 1. How would you deal that, Manju? The option is in front of you. Repeat, Casey. Okay. What's your My question is, supposedly if the speed is not greater than Mach 1, how are you going to deal with that? What would you say to that particular argument as of that moment? Then it is clear, Casey, it is not supersonic plane. Okay. अगर speed जो है वो Mach 1 There is a threshold that नहीं है, then it is not. it is ठीक है, perfect. I'm convinced. Mahesh, defend this. सुपरसोनिक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है. स्पीड कम होगा, लेस देन मार्क 1, वहां तक मैं भी एग्री करता हूं. बट इट डजंट हैज टू बी. यहाँ पे कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है कि अबाउट प्लेन, तो मैं कैसे एज्यूम करूं कि वो प्लेन ही है. ठीक है. I'm not very much convinced with the plane part till now. Now the final concluding remarks. If we are talking about train, then we have to talk about the next sentence in the train also. We are not talking about any other things. Okay. Not very much convincing. Anyone else who would like to say? ऐसे तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं earthquake की बात नहीं हुई है. Mahesh, towards you, the prosecutor. I can say I did not talk about the supersonic part. If you are saying that we don't really have to be focused upon the part of the supersonic because the train is not supersonic, I can even say that the earthquake is not supersonic. Come on, man. I can say that. Can I not? हाँ, कुछ भी आप बोल सकते हो. Correct. लेकिन यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट जो है पहले पार्ट में प्लेन के बारे में जरूर बोला गया, लेकिन उस सुपरसोनिक है या नहीं सेकंड पार्ट से वो कंफर्म नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब पार्ट 1 is verified, part 2 is not verifiable. Manju, I want you to give your concluding remarks on this case. Wait a second, Casey. I want you to give your concluding remarks on this case. The case that we are seeing. As like compared to option C, that is much better and it is relevant to the question. Okay. It is C versus D and you're saying to D. Okay, now let's see. I would say option D is equally something that I can say. It is equally challenging the argument, है ना? No, you know what? अभी इसमें ये जो एक्सरसाइज हमने कराई, why did I do that? The reason behind it, I wanted you guys to delve deep into this framework. दोनों में पता है एक कमी हमको महसूस हुई. You guys were going towards the objectified approach. दोनों की अप्रोच में हमने ऑब्जेक्टिविटी देखी.
जहां पे महेश को थोड़ी सी क्लैरिटी थी कि ऑब्जेक्टिफाइड नहीं होना है, आई वुड रेट हिम एज सपोज 8, whereas Manju, he was rigid in his approach. I would rate him as something 5. Don't deprive yourself now. Why did I do this? Because जब आप MBA में जाते हो, ठीक है, now back then when I like gave my XLRI interview for business management program, I got a case study just like this of contrapositivity, and I still remember the name of that professor. It was something like Arora something. He was an alumni of Lucknow. I am Lucknow. So he said that Vishnu, while you were answering your questions, there was a knack of rigidity in you. आप थोड़े बहुत rigid थे अपने approach में. We want someone who is flexible. Flexible का मतलब ये होता है बच्चा कि वो बंदा अपने व्यू पॉइंट को तो ध्यान में रखे ही रखे, ठीक है, वो अपने व्यू पॉइंट को ध्यान में रख रहा है, बट एट द सेम टाइम ही शुड हैव दिस अप्रोच कि वो एक्नॉलेज भी करे सामने वाले की व्यू पॉइंट को. नाउ आई एम नॉट सेइंग मंजू डिडंट डू दैट, आई एम जस्ट सेइंग मंजू वाज सो स्ट्रिक्टिफाइड इन हिज व्यू पॉइंट कि उसने दुनिया को देखा ही नहीं. फिर आगे उसने सीधे ये डिक्लेयर कर दिया, इट इज सी वर्सेस डी सर एंड डी शुड बी विनिंग. Please understand, Manju, the court of law is not admissible. It is not admissible in the court of law as per the evidences that you have given that you can decide anything on your own. What you did back there was आपने खुद से ही decide कर लिया सारी चीजें. It was like you were playing the judge. I clearly gave you a role of defendant. है ना? कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है, जब आप लॉ पढ़ते हो, जब आप लॉ में फाइट करते हो कोर्ट में, तो उसमें दो रहते हैं ना, दो लोग रहते हैं. एक रहता है प्रोसिक्यूटर जो अगेंस्ट में रहता है, एंड एक रहता है डिफेंडेंट जो फॉर में बोलता है केस के. महेश हैज डन दैट थिंग. यू ट्राइड टू डू दैट थिंग टिल सेकेंड आर्ग्यूमेंट, बट इन द फाइनल आर्ग्यूमेंट यू डेविएटेड. अब अगर आपने ये चीज की है, ऑब्जेक्टिफाइड अप्रोच के बेसिस पे अगर देखें, फ्लेक्सिबिलिटी महेश की ज्यादा थी, मंजू की थोड़ी सी कम थी. एट द सेम लॉजिक इफ आई एम गोइंग, ऑब्जेक्टिफाइड अप्रोच नहीं ले रहे हैं अभी हम, ठीक है, या चलो उसी को ले लेते हैं आप लोग के हिसाब से. अ सुपरसोनिक प्लेन ट्रैवल्स एट स्पीड इन एक्सेस ऑफ मार्क 1. मार्क 1 में या मार्क 1 के एक्सेस में एक सुपरसोनिक प्लेन ट्रैवल करता है. इफ इट इज नॉट सुपरसोनिक, व्हाई डिड यू गाइस फॉरगेट दिस पार्ट? आप लोग ये पार्ट क्यों भूल गए? अगर ए जो है वो सही है तो इट विल लीड टू बी बीइंग करेक्ट. इट वाज नॉट समथिंग लाइक कि बी अगर सही होगा तो वो ए को भी सही कर देगा. इट वाज कि बी अगर सही नहीं होगा तो वो ए को सही नहीं करेगा. यहां पे कॉन्ट्रा पॉजिटिविटी आपकी फेल हो रही है ऑप्शन नंबर डी में, विच इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड एमबीए में कितना माइन्यूट चीजों को देखा जाता है? Can you repeat, Casey? आई एम सेइंग जो अप्रोच आप यूज किए, ठीक है, ऑब्जेक्टिफाइड अप्रोच, और जो आप में रिजिडिटी आई, ठीक है, दैट केम बिकॉज यू हैव बीन लिविंग दैट वे एंड एमबीए टेस्ट्स दैट स्किल इन द इंटरव्यू. अगर आप वहां पे उनको वो चीज नहीं दिखाओगे जो वो देखना चाहते हैं, यू विल सिंपली बी एलिमिनेटेड. And that is one of the reason why I was eliminated, or maybe I got waitlisted. That could be one of the reason. But anyways, option number E देखते हैं. ये D clear है आप लोग को? No, Casey, please repeat. Okay, ठीक है. सुपरसोनिक प्लेन, या हम इसको आपको डीएम में बता देंगे, ठीक है, बहुत लंबा, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया यार इस पे, ठीक है. आप कॉल करना क्लास के बाद, हम बता देंगे, बाकियों का टाइम जा रहा है. Yeah, Casey. चलेगा? We can Okay. proceed. E is saying fluoride generally prevents cavities. If there are no cavities, then there was no fluoride used. It's not really necessary. You cannot say that. Which is why I can say till now I am very much convinced on option number C, and that is in fact my correct answer for this question. With this, we are done with this particular sheet.
We'll move to new sheet today. That is critical reading, moderate. It is a continued format. I want you guys, I'm zooming the screen. You guys will be getting exactly 3 minutes. In 3 minutes, I want you all to answer the questions. Abhi you at 22:36. Open your mic sharp at 22:39 to answer the questions. Till then, nobody will speak. Start solving.
Okay, guys, can I have the answers, please? Most likely D. Most likely D. Okay, but I don't want most likely. I want assurance. So give me a short one. KCE versus D. Again A versus D. I don't want this. I want exact correct answer जो आप लोग ने मार्क किया है. I don't care वो सही है गलत है. I don't care for that. D KC. D. ठीक है D. Anyone else? चलो देखते हैं. A recent report determined that although only 8% of drivers entering Banff National Park possessed yearly entry permits as opposed to door passes, these drivers represented 15% of all vehicles entering the park. Now, clearly, drivers who possess yearly entry permits are more likely to enter Banff National Park on a regular basis than are drivers who do not. बहुत बढ़िया तरीके से इसने देखो क्या किया है ना इसने. अगर हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, घुमा फिरा के उसने बस एक पॉइंट बोला है. इट इज नॉट इवन कि उसने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बोल दिया या एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. घुमा फिरा के एक चीज पे आ रहा है वो बार बार. एंड विल डी दैट. वो बोलता है एक रीसेंट रिपोर्ट डिटरमाइन करती है कि 8% जो ड्राइवर्स है ना, ठीक है, दिख रही ना स्क्रीन, दिख रही है, दिक्कत तो नहीं हो रहा? नहीं. चलो ठीक है ठीक है ठीक है. ये बोलता है कि भैया देखो हमारी रिपोर्ट आई है. वो रिपोर्ट बोलती है पहली चीज दैट 8% ड्राइवर्स who enter the park उनके पास ईयरली परमिट्स थे. दे हैड ईयरली परमिट्स. ठीक है चलो समझ गए. दूसरा पॉइंट बोलता है उनके जो व्हीकल्स हैं दे कंस्टिट्यूटेड only 15% of entries या entire entries that were registered over there. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? Only a small group of drivers produced many entries. ये कैसे पॉसिबल है, कोई बता पाएगा? Can anyone tell me how is this possible? उन्होंने ही बार बार ट्रिप लिया होगा. Perfect. बहुत बढ़िया. That is what the hidden assumption in this question is, that these 8% drivers they are taking repeated trips. यही लोग बार बार आना जाना कर रहे हैं जिनके कारण ये एंट्रीज हो रही है. इसका मतलब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम कंक्लूजन पे देखें देन आई कैन कंक्लूड दैट ड्राइवर्स विथ ईयरली परमिट्स एंड द पार्क मोर रेगुलरली. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली दैन द ड्राइवर्स जिनके पास ईयरली परमिट नहीं है. अब ध्यान से देखो. सबसे पहले तो अजम्पशन अपन को निकालना है. ठीक है, अजम्पशन इसमें क्या है? ठीक है, अज्यूम क्या कर रहा है ये चीज? कौन सी चीज ऐसी है जो ये आर्गुमेंट अज्यूम करके चल रहा है? हम अजम्पशन एक अलग पेन से लिखते हैं. चलो, यूजिंग दिस पेन टू राइट अजम्पशन. ये बोलता है कि भैया ये जो 8% ड्राइवर्स हैं
they are actually using their permits to enter the park. Now, why did I say this? Can anyone tell me? Why did I emphasize on this particular aspect and not anything else? Why? What's the logic? I only have 15 seconds. Answer my question fast. The word which says clearly, driver who possess the yearly entry permits are more likely to enter the park on a regular basis. So ठीक that's है? what वहां पे वो emphasis दे रहा है, मतलब वो conclude करने की कोशिश कर रहा है. Correct. So तो basically ये जो हमने लिखा है ब्लू से, this exactly is my assumption. ये जो रेगुलरली हमने बोला, रेगुलरली 8% अगर लोग घुसे तो 8% ही होना चाहिए था ना. ये +7% कहाँ से आए? ये +7% इन्हीं के वापस से विजिट से आए हैं. विजिट 2 जब ये किए थे, जब ये लोग, इनकी जब विजिट 1 हो गई तो इनका ये 8% यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया. नाउ व्हेन दे आर गोइंग फॉर एन विजिट 2, तब इनका ये 7% यहाँ पे काम आ रहा है, विच इज वाई दिस 8% इज नाउ कन्वर्टेड टू 15%. दिस इज व्हाट द अजम्पशन इज, और यही हमको निकालना था. ये अच्छे से क्लियर है, ये पूरा आर्गुमेंट जो अभी हमने स्ट्रक्चराइज किया है सामने आपके. yes. पक्का? एनी डाउट? इंटरप्ट मी राइट नाउ, टेल मी. अगर नहीं हम वापस से समझाएंगे. Okay, it is clear. ठीक है, चलो ऑप्शंस देखते हैं. द कंक्लूजन ड्रॉन अबव डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions. ठीक है, assumption अपन को दे दिया है ऑप्शंस में, कंक्लूजन अपन को दिया था ऊपर. ठीक है, अब देखो कंक्लूजन आप बोल सकते थे सर इसमें क्लियरली तो हम लोग नहीं पढ़े थे, बट इसमें क्लियरली है. वी डिड नॉट स्टडी क्लियरली, बट यहाँ पे तो है क्लियरली. देखते हैं. द नंबर ऑफ एंट्रीज टू बैंफ नेशनल पार्क बाय ड्राइवर्स विथ ईयरली परमिट्स डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ ईयरली एंट्री परमिट्स इशूड बाय द पार्क 2. पार्क 2 मीन पहला प्रॉब्लम यार, पार्क 2 नहीं. एक सेकेंड, ये शायद नंबरिंग है, फुल स्टॉप के बाद है. वो फुल स्टॉप के बाद है किसी शायद वो मतलब हाँ, ठीक है. Issued by the park. Yearly entries issued by the park. This is the problematic factor. अगर वहां पे 2 होता तो वो भी एक दिक्कत होती, बट ठीक है, नहीं है. It is talking about the number of permits issued. Does it really depend on that? Are we assuming that it depends upon the number of permits issued, or is it talking about the number of visits that it is doing? यहाँ पे विजिट की बात हो रही है, emphasis on visit है. विच इज परमिट यहाँ पे इरेलीवेंट हो गया. ठीक है, तो प्राइमरली देखो यार, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मैजिकल. ऑल आई एम डूइंग इज कि जो क्वेश्चन में दिया है हमने वो पढ़ा, हमने उसको अपने शीट में उतारा बहुत अच्छे से. आई क्रिएटेड अ ग्राफ, आई क्रिएटेड एन एनालॉजी, एंड उसके बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन की स्टेम को समझे. क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है हम वो एक बार समझ गए, उसके बाद हम जाते हैं ऑप्शंस पे. इफ एनी ऑप्शन दैट इज आंसरिंग माय क्वेश्चन एंड इज इन कंटेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज गिवन इन द premise एंड द आर्गुमेंट इन आवर पैसेज, देन दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. जैसे करके दिखा रहे हैं यहाँ पे. ड्राइवर्स हु possess yearly entry permits to BNP are more likely to stay longer in the park than drivers who do not. Again, stay longer in the park. Was that the case? It was about the timing. Was it about the timing or was it about the number of entries? फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हुई थी ना कि बात टाइमिंग. जब फ्रीक्वेंसी के बारे में हो रही है तो भाई साहब आप क्यों बोल रहे हो टाइमिंग कहां से आई? फक दिस, इट कैन नॉट बी द आंसर. आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा ऑफेंसिव लग रहा है, बता देना कहीं भी लगे तो. आई जस्ट स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स बिकॉज रिसेंटली एक केस हो गया है. आई गेस महेश यू नो अबाउट दैट. All drivers with yearly entry permits to BNP entered the park at least once during the period of the report. Okay. Till now I'm convinced. अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ हमको. All drivers with yearly entry permits to BNP entered the park at least once during the period of the report. हमको इसमें कोई एलिमिनेटिंग ग्राउंड बता सकता है?
एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द वो है ना, मतलब 8% को है तो हो सकता है कि उसमें से 5% ही 15% को बना रहे हो मल्टीपल विजिट से। ओके लेकिन हम ये श्योर नहीं हो सकते कि एटलीस्ट वंस वो विजिट किया ही किया होगा, हो सकता है नहीं किया हो, कोई एक नहीं किया हो। So basically, what I can say in this is, supposedly, if it is saying yearly permit holder enter at least once, चलो मान लेते हैं even if some permit holders never entered, ठीक है, the conclusion still hold ना, because like the ones who did enter might still enter more frequently than day pass drivers. हम ये बोल सकते हैं इस चीज में, which is why although C is correct, I'm not saying C is totally incorrect, partially ये सही है, बट अभी तक ठीक ठाक लगा तो हम होल्ड करेंगे। आई एम नॉट सेइंग गलत है, आई एम नॉट सेइंग सही है, पार्शियली सही है। Drivers possessing yearly entry permits to BNP are more likely to enter the park regularly than are drivers who do not. Very much convincing, very much, I would say, it is connecting the evidence to the conclusion that was given in that paragraph. How, like, it is saying that the pattern observed of the reporting, जो वहां पे आपके पैटर्न आपने ऑब्जर्व किए थे, that actually is being reflected by the true behavior in this particular thing. जो आपका ट्रू बिहेवियर है ईयरली परमिट ड्राइवर्स का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर हम इस असम्पशन को निगेट कर देते हैं, ठीक है, ड्राइवर्स possessing yearly entry permits to BNP are not very likely to enter the park regularly than are drivers who don't. भैया अगर if I'm doing this, do you think this particular blue part would crumble down? Can Yes. this happen? हाँ, So if it is crumbling, then I can say this is my correct option. But we are doing critical reasoning, so I will say I'm not gonna mark it. I'm gonna hold it. ठीक है. Drivers possessing yearly entry permits to Banff National are more likely to enter the. चलिए ये तो गया. Drivers who entered BNP with yearly permits during period of the report were representative of the types of drivers who have entered other national parks with similar yearly permits. I mean, seriously, how is this even like relevant? कैसे है? I'm not getting that. Why? Because the problematic factor in this is it is talking about other national parks. ये क्या ही रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में? If it is not playing any sort of role, then I can say it is something that is irrelevant. Now, if I'm saying it is C versus D, then D is winning the argument because उसके पास सारे वो evidences हैं, सारे वो negation test हैं जो अभी तक हमने assumption framework में किए हैं. D is the correct answer for question number 6. Any doubt in this? No case, sir. नहीं केसी। Okay, any other doubt? हाँ केसी, यहाँ पे हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि डी का जो फ्रेमिंग ऑफ द वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू सी। कर सकते हैं, बट दैट वुड बी अ वीक लॉजिक, आई वुड से। इट इज नॉट इन क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए महेश, इन सीआर्स ना, इट इज नॉट अबाउट द वे यू आर प्रेजेंटिंग द वर्ड्स, इट इज मोर अबाउट लॉजिक। वर्ड्स डू प्ले अ रोल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, रोल प्ले करते हैं, बट लॉजिक ज्यादा रोल प्ले करता है। वर्ड्स का जो एग्जिस्टेंस होता है दैट इज मेरली 10 to 20%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। Like, you know, I was a very weak student in critical reasoning previously, but with God's grace, I met a mentor, and he was known to be a critical reasoning wizard. तो उस टाइम लाइक उनसे पढ़े हम लोग, एंड आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स जो वो बताए थे हम लोग को। आई एम ट्राइंग टू गिव ऑल दोज लर्निंग्स बिकॉज इफ आई टेल यू हिज फीस, इट वाज समथिंग अराउंड 90,000 समथिंग। 90,000 लेते थे वो VARC का। For only VRC? हाँ जी, सिर्फ VARC का। सो आई हैव स्टडीड फ्रॉम हिम, एंड आइडली ही इज अ मेंटर ऑफ GMAT। वो GMAT ही पढ़ाते हैं सिर्फ। GMAT हो गया, LSAT हो गया, जो लॉ वगैरह के एग्जाम्स रहते हैं, ही यूज्ड टू टीच ओनली दोज थिंग्स। बट ठीक है, सही समय पे सही तरीके से सही तुक्का लग गया तो सस्ते में मिल गए। महीने का 7,500 लेता था वो आदमी, पता है? यहाँ साल की फीस हो जा रही है आप लोग की उतनी। Anyways, let's go to our question number 7. Steve is saying, Rick and Harry, two of my red-haired friends, are irritable.
ठीक है, ये shit. It seems that red-haired people have bad tempers. ये देखो पढ़ते ही साथ ना हमको थोड़ा सा तो अटपटा लगा ही है, ठीक है, बट देखते हैं। जॉन बोलता है that's ridiculous. Red-haired people are actually quite docile. Jeff, Muriel, Betsy, three of my red-haired friends, all have placid demeanors. Which of the following statements below provides the most likely explanation, most likely, for the two seemingly contradictory statements above? आपको देखना है कि भैया मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन कौन सा हो सकता है, which of these explanation could most likely be, or which of these statement could most likely be the explanation of these two things that are given to you. समझ गए? हाँ कैसे? चलो देखते हैं। The number of red-haired people whom Steve knows may be different from the number of red-haired people whom John knows. Oh. अच्छा 1 मिनट, नहीं सॉल्व करने का टाइम तो दिया ही नहीं, सॉरी। सॉल्व करो सो चलो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस काम को 2 मिनट लो, इसको 3 मिनट नहीं, या 1.5 मिनट्स, चलो 2 मिनट भी नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Guys, the answers please. C. C. Okay. बाकी लोग? E. Okay. One is saying E, one is saying E. एक C, एक E. महेश is saying E. मंजू saying C. ठीक है। और कोई? चलो नो वरीज, देखते हैं। The number of red-haired people whom Steve knows may be different from the number of red-haired people whom John knows. But ये explanation कैसे होगा? आइडियली ठीक है, हम मान लिए आप जो कह रहे हो भैया, बट हाउ इज दिस एक्सप्लेनिंग द लॉजिक ऑफ लाइक उनका जो लॉजिक है वो कैसे आ रहा है? अगर एक नॉर्मल वे में हम उस चीज को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, don't you think it is kind of irrelevant to exist? Even the existence of it is irrelevant. Why? Because total count of people, अगर हम यहाँ पे देखें, number of red-haired people and number of red-haired people, वहां पे सिर्फ 2-3 लोग की बात हो रही थी ना। Even if John is saying that कि मेरे को I know 100 redheads and Steve knows only 2, it doesn't resolve the conflict between their specific observation ना। वो conflict तो resolve नहीं हुआ ना आपका conflict तो as it is रह गया।
which is why it is not an explanation. Eliminated. B is saying the number of red-haired people whom both Steve and John know may not be greater in total than the number of non-red-haired people whom both Steve and John know. Okay, ठीक है, चलो. I would say this is something as out of scope. Why is it out of scope? Because कहीं पे भी नॉन रेड हेड्स की बात हुई ही नहीं है. नॉन रेड हेड्स कहीं पे आई ही नहीं है. तो जब आई ही नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो उनको यहाँ पे? Because it is not providing any sort of insight into the temperament of redheads, na. Argument is specifically about whether redheads are irritable or docile. आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर है, उनके नेचर के ऊपर है आर्ग्यूमेंट. इट इज नॉट अबाउट प्राइमरली द आर्ग्यूमेंट इज नॉट रेस्टिंग अपॉन द फैक्ट कि भाई उनका या बाकी लोगों का टेम्परामेंट कैसा है. वो सिर्फ रेड हेड की बात कर रहा है, नॉट अबाउट द पीपल विथ नॉन रेड हेड, विच इज वाई बी इज अगेन इररिलेवेंट. सी देखते हैं. It is likely that Steve or John has incorrectly assessed the temperament of one or more of his red-haired friends. Okay, ठीक है, मान लिए. अब पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? When we are dealing with GMAT के critical reasoning questions या CAT के critical reasoning questions, we generally accept anything that is stated with an evidence. मतलब उसके जो ऑब्जर्वेशंस जो हैं दे आर एज अ फैक्ट. मतलब इट शुड रिजॉल्व योर आंसर. इट शुड एक्सप्लेन कि आपके दोनों के ऑब्जर्वेशंस कैसे ट्रू हो सकते हैं. इट शुड नॉट सिंपली क्लेम कि भाई एक पर्सन झूठा है, एक पर्सन गलत है या दूसरा सही है. दिस ऑप्शन इज एग्जैक्टली डूइंग दैट. उसने प्रेमाइस को ही अटैक कर दिया. प्लीज अंडरस्टैंड, नेवर अटैक प्रेमाइस, नॉट इवन इन द 7 heavens. डोंट डू दैट मिस्टेक कि आप प्रेमाइस को ही अटैक कर दिए. खत्म हो जाएगा आपका पूरा एग्जाम अगर आप ऐसा किए. एंड इट इज एग्जैक्टली सेइंग इनकरेक्टली असेस्ड. आर यू ट्राइंग टू से दैट आई एम अ लायर? व्हिच इज व्हाई अगेन इट इज एलिमिनेटेड. D is saying it is likely that both Steve and John have friends who are not red-haired and yet also have bad tempers. Again, I would say a temperament with people with other hair colors. मतलब क्या है? Who are not red-haired. अगर रेड हेयर नहीं है तो या तो फिर दे आर बाल्ड या फिर दे आर ब्लैक हेड. एलियन इंफॉर्मेशन नहीं लेके आ रहा है ये यहाँ पे. इट इज ब्रिंगिंग समथिंग दैट डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड. इट इज ट्राइंग टू डू दैट. सो कैन आई से दिस इज समथिंग ऑफ एन इररिलेवेंट आंसर चॉइस, विच इज वाई आई कैन से इज द करेक्ट आंसर. जब 4 के 4 एलिमिनेट हो गए तो आखिरी ऑप्शन जो बचा वो हमारा सही होगा. लॉजिक क्या है? एलिमिनेशन तो देख लिए सर, अब लॉजिक बताओ उसका. ठीक है, चलो देखते हैं. लॉजिक बोलता है कि आपका जो पैराडॉक्स है, ठीक है, वो इस ऑप्शन में रिजॉल्व हो जा रहा है. कैसे हो रहा है देखते हैं. ध्यान से देखो, इन दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज ओनली into picture, or that is existing only because of one reason, because both of them are doing a hasty generalization. दोनों एक hasty generalization कर रहे हैं, that's it. एक बोलता है रिक और हैरी जो हैं they are irritating. दूसरा जेफ, म्यूरियल, बेट्सी they are docile. क्या एविडेंस है आपके पास? मतलब आपने बोल दिया, ये बोलता है रेड हेड्स हैं ये तो ये लोग इरिटेट करते हैं. रेड हेड्स हैं तो ये इरिटेट करते हैं. ये रेड हेड्स हैं बट ये इरिटेट नहीं करते हैं. जब आप एमबीए में जाओगे ना, आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बीआरएम. आई गेस दिस कम्स इन आई एम नॉट श्योर सेकेंड या फर्स्ट ईयर में ही रहता है, एंड में एकदम. इसमें बात होती है सैंपल साइज की. उसमें आपको पता लगेगा कि सैंपल साइज किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए, किसी भी क्लेम को वैलिडेट करने के लिए कितना मैंडेटरी होता है. एट द सेम लॉजिक, विद द सेम लॉजिक, दोनों के जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हैं दे आर वैलिड. ठीक है, इवन इफ आई एम सेइंग कि उनके जो ब्रॉड कंक्लूजन्स हैं अबाउट ऑल द रेडर्स दे आर लॉजिकली फ्लॉड, बट बेस्ड ऑन द सैंपल साइज दे हैव,
दे कैन से कि भैया जो मेरा सैंपल साइज है उसके बेसिस पे मैं तो बोल सकता हूँ ना कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिडेटेड है, तू वैलिडेट कर ले, कहीं से भी करना है तुझे. विच इज वाई इट इज रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स. द एग्जाम्पल्स दैट स्टीव यूजेस एंड द एग्जाम्पल्स दैट जॉन यूजेस टू सपोर्ट देयर कंक्लूजन्स आर लाइकली बोथ वैलिड, which says itself says likely both valid. लाइकली बोथ वैलिड मतलब वो एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है ना यहाँ पे. इट इज जस्ट सेइंग कि यार कुड भी कि ये सही हो, कुड भी कि ये वैलिड हो. It is not making a claim. It is not making an assertion. It's giving you a logic. It is making a hasty generalization, which is why option number E is the most correct answer choice of question number 7. And with that, we come to an end of critical reasoning part 2. I hope this session was helpful for you. And in the next class, what we will be doing, I'm telling you beforehand only. अपन वीकनिंग वाले करेंगे. वीकन बचा है अभी अपना, कॉज इफेक्ट बचा है, पैराडॉक्स बचा है. अभी जो क्वेश्चन किया दैट वाज अबाउट द पैराडॉक्स एंड रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स. गोल एक है, वो गोल क्या करेगा, एक गोल है एंड दैट गोल विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ बोथ कैन बी ट्रू. लाइकली वैलिड अभी पढ़े ना अपन, पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ समझे? तो जो भी चल रहा है आप लोग का पूरा, आप लोग को जो शीट भेजी गई है ना वो पूरे उस करिकुलम के हिसाब से ही चल रहा है. तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रेकमेंड द नेक्स्ट क्लास यू कम, प्लीज रीड पॉइंट नंबर 7, 8 एंड 9. 7, 8, 9 पढ़ के आना, अच्छे से समझ के आना, ठीक है. Although I will be explaining, but it will be a very brief explanation. And thank you for joining, guys. Have a great day. Bye bye.